Welcome to Paramount Public School. Today we're going to start our revision class in which we will cover exercise section of each chapter in your computer science book Alpha. So we will start with chapter 1. The name of chapter is Categories of Computer and Computer Languages. This is part first of your exercise section and we will cover this exercise section in two parts. ओके हम इस क्लास में हम रिवीजन शुरू करने जा रहे हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की. सो वी विल स्टार्ट विद द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. These are the multiple choice questions in which you have to select one right answer from the four options. आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से आपने एक राइट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन it converts a high level language program line by line to machine level language. I have already discussed in the previous classes that which translator translate the program line by line and which translate the program the whole program. कौन सा ट्रांसलेटर है जो सिर्फ लाइन बाय लाइन कोड को ट्रांसलेट करता है और एक ट्रांसलेटर है जो पूरा प्रोग्राम को एक ही साथ ट्रांसलेट करता है. तो ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था. यू कैन चेक द स्लाइड्स ऑफ प्रीवियस क्लासेस. सो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा. अगर नहीं है तो फिर भी हम चेक कर लेंगे. आप देखिए, देयर आर फोर ऑप्शंस इसमें दे रखे हैं एंड यू हैव टू सेलेक्ट वन ऑप्शन. यू हैव टू सेलेक्ट वन राइट ऑप्शन. ओके, if you know answers you can write on your notebook and we will discuss at the end of this slides. इसके आंसर्स हम बाद में डिस्कस करेंगे. know the answer, just take your notebook and write the answers. Okay, which converts the high level language line by line to machine level language? The options are: A is assembler, B is interpreter, C is compiler, and D is processor. So just choose the right answer. Okay, and we will discuss it later. Second is a program written in assembly language. A program written in assembly language is called वो program जो assembly language में लिखा जाता है. And assembly language is which I have already told you about the generations of programming languages. There are 5 generations of programming languages and assembly language comes in which generation? Second generation language. And आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट असेंबली लैंग्वेज में जो कोड लिखा जाता है वो किस उस कोड को क्या बोलते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कोड? सी द ऑप्शंस. ए इज ऑब्जेक्ट कोड, बी इज असेंबलर, सी इज सोर्स कोड एंड डी इज mnemonic code. This is mnemonic code, my students. It's the spelling start with M. Okay, but the M is silent, so it is called mnemonic code. Now the third question is, this language uses strings of only zeros and one to give instructions to computer. ये लैंग्वेज ज़ीरो एंड वन को यूज़ करती है कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए. कौन सी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स में? जीरो एंड वन. वी ओनली यूज़ जीरोज एंड वन टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट जीरो वन हम किसके थ्रू देते थे इनपुट? अगर कंप्यूटर को हमने जीरो एंड वन के देनी है तो वी यूज़ पंच कार्ड. हम पंच कार्ड का यूज़ करते थे एंड उसके थ्रू हम ओल्ड कंप्यूटर्स को जो फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन फर्स्ट कंप्यूटर्स को इनपुट देते थे. तो वो पंच कार्ड जब इनपुट देते थे तो वो कंप्यूटर्स के लिए कौन सी लैंग्वेज होती थी वो समझ जाता था कि या वट द यूज़र वांट टू गिव द इनपुट टू द कंप्यूटर. So see the options. A is machine language, B is assembly language, C is high level language and D is all of the above. So if you don't know the right answer, just write down in your notebook. Okay, fourth option is, which of the following statements are not true about supercomputers? What are supercomputers? The computers with very high speed, with very high storage capacity, and they are with very big size also. So these are supercomputers. So just read the instructions and read the options and just mark out the wrong statement here. Okay, A is they can process trillions of instructions per second. कंप्यूटर, ये कंप्यूटर्स कहते हैं कि जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो एक ही सेकंड में लाखों करोड़ों अरबों इंस्ट्रक्शंस को एक ही टाइम पे उसको प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है. ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड.
So is it true? Second one is they are used for complex data requiring high speed of operations for the processing of data. What is complex data? Complex data क्या होता है बेटा? वो डेटा जिसमें बहुत सारी इमेजेस हो, पिक्चर्स हो, ग्राफ्स हो, लाइंस हो, सो वो एक टाइप का डेटा, उसे कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो उसके लिए कंप्यूटर को टाइम लगता है प्रोसेस करने में। और कॉम्प्लेक्स डेटा, बट सुपर कंप्यूटर क्या करता है? सुपर कंप्यूटर वो कॉम्प्लेक्स डेटा को भी विद वेरी हाई स्पीड इन मिलियन इन सेकेंड्स उसको प्रोसेस करता है और उसको विद वेरी हाई स्पीड हमें आउटपुट भी देता है। सो इज इट ट्रू? सी ऑप्शन देखिए बेटा, दे आर यूज्ड इन रिसर्च सेंटर्स। क्या सुपर कंप्यूटर रिसर्च के लिए यूज होता है? इज दे कैन साइंटिस्ट और द डॉक्टर्स यूज सुपर कंप्यूटर फॉर देयर रिसर्च? क्या वो यूज होता है? अभी रिसेंटली देखा होगा, देयर इज ए वेरी पैथेटिक डिजीज कोविड-19, कोरोना वायरस चला, तो उसकी वैक्सीन बनाने के लिए भी रिसर्च हो रही है। सो वो रिसर्च क्या ये सुपर कंप्यूटर उस पर हेल्प करेगा या करता है? इज इट ट्रू? तो बताइए। एंड द लास्ट ऑप्शन इज दे आर यूज फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स। बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करनी हो, ट्रांजैक्शंस मींस फॉर एग्जांपल जहां हम एटीएम्स यूज़ करते हैं, वहां से हम पैसे निकालते हैं, बैंक में यूज़ करते हैं, वहां से हम पैसे निकालते हैं, तो क्या सुपर कंप्यूटर वहां यूज़ होता है ट्रांजैक्शंस के टाइम पे? सो ये आप ऑप्शंस जस्ट चेकआउट एंड हम मुझे बताइए, ठीक है? नो, इन नेक्स्ट स्लाइड you will gonna see the answers of these all options. So there is one more question left. A microcomputer, a mini computer, sorry, not a micro, a mini computer is, mini computer क्या होता है? there are but how many types of computers are there? Micro computer, mini computer, mainframe computer and super computers I have told you about. So mini computers क्या होते हैं, उसके ऑप्शंस एग्जांपल्स दिए हैं। इज इट ए गेमिंग कंसोल? गेमिंग कंसोल समझते हो आप लोग, जो वीडियो गेम खेलते हैं? वीडियो गेम खेलते हैं आप लोग, जो वो गेमिंग वो जिसमें यूज होता है वो वीडियो गेम, जिस वो पार्ट में इंस्टॉल होती है, इज इट दैट अ मिनी कंप्यूटर? डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो आप लोग आपके घर पे होते हैं, या द कंप्यूटर्स इन योर schools also. And there are C and D option is HP 2100 and PDP 10. These are the types of computers. Just mark out which is mini computer in these options. Okay, so let's discuss the answers. See, the first question is, it converts a high level language to line by line to machine language. See student, line by line ट्रांसलेटर कौन करता है? दिस इज कॉल्ड इंटरप्रेटर. इंटरप्रेटर इज यूज टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन. इट गिव्स आउटपुट लाइन बाय लाइन आल्सो. ओके, एंड कंपाइलर किस लिए यूज होता है? कंपाइलर इज यूज टू ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम इन वन टाइम. वो लाइन बाय लाइन यूज नहीं करेगा, वो पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में आपको आउटपुट दे देगा उसके. सो द राइट आंसर इज बी. द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज बी, interpreter. Okay, I have already discussed here. The first one answers here. First one is B. Now the second question. A program written in assembly language. Assembly language में जो program लिखा जाता है, that are called mnemonic codes. See, in assembly language we use mnemonic code. Mnemonic codes क्या होते हैं? If you want to add some numbers in the program, and then you can use ADD add. These mnemonic codes are understood by human beings and computer both. हम भी इसे समझ सकते हैं, यस मैंने इसको ऐड का प्रोग्राम लिखा है, तो ऐड में लिखूंगा तो ये ऐड कर देगा दो नंबर्स को, और कंप्यूटर कैन आल्सो अंडरस्टैंड बिकॉज इट इज रिटन इन असेंबली लैंग्वेज. सो द राइट आंसर इज डी. क्वेश्चन सेकंड का आंसर है डी. द थर्ड क्वेश्चन, that a language which use zeros and ones to give instructions to computer. Zero and one कौन सी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को लगेंगे? दैट इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज. आंसर इज ए. थर्ड का आंसर है ए. ओके, असेंबली लैंग्वेज मैंने आपको बताया निमोनिक कोड यूज करती है, हाई लेवल लैंग्वेज सी प्लस एंड ऑल. सो आवर आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन इज ए, मशीन लैंग्वेज. Now the fourth one is, which of the following statements are not true about supercomputers? The both above three options A, B and C are true beta, but the last option is supercomputers are not used for transaction in banks and ATMs. Here, which computers are used in banks and ATMs for transactions?
Mainframe computers. We use mainframe computers. So the right answer for the fourth question is D. They are used for large amount of transactions. Okay. Now in fifth question, there are two options which are right. See, HP 2100 and PDB-10 both are mini computers. These both are mini computers. These are the types of mini computers. So desktop is a microcomputer and gaming console is also a microcomputer. So these two are mini computers. You can write both C and D. Okay. So these are the answers. You just write down and compare the questions. Okay. Now let's start another. The B option is fill in the blanks. So there are some fill in the blanks. We have to put a right answer here in fill in the blanks. Okay. So let's discuss first. A dash is a type of computer that has no keyboard and also be used for making calls. बेटा वो कौन सा कंप्यूटर है जिसके साथ कीबोर्ड नहीं होता बट हम उसको कॉल करने के लिए भी यूज करते हैं और उसको एज ए कंप्यूटर भी यूज कर सकते हैं बट इट डजंट कंटेन एनी कीबोर्ड. If you know the answer, just write down. Okay. Now the second is dash are smaller computers that runs on microprocessor in the central processing unit. ये बहुत छोटे कंप्यूटर्स होते हैं, स्मॉलर कंप्यूटर्स, जो माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं अपने सीपीयू में. माइक्रो प्रोसेसर किस में यूज होता है बेटा? सीपीयू में. क्वेश्चंस का आंसर क्वेश्चंस में ही छिपा होता है. जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली. These are smaller computers that run on microprocessor in their central processing unit. अपने सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर कौन से कंप्यूटर्स यूज करते हैं? Okay, just write down if you know the answer. Third one is a dash translates entire program written in higher level language into machine level language in one go. अभी मैंने पीछे आपको क्या बताया? देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांसलेटर्स. एक लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है और एक पूरे प्रोग्राम को वन गो में एक ही बार में ट्रांसलेट करता है. सो वो कौन सा प्रोग्राम है जो एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज? जस्ट राइट द आंसर इफ यू नो. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज dash is a formal language designed to communicate instructions to the computer. वो लैंग्वेज जो हमारी हेल्प करती है हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकें, उसे अपनी इनपुट दे सकें, इंस्ट्रक्शंस दे सकें आउटपुट के लिए, वो लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? ओके, सो लेट्स डिस्कस द आंसर्स आल्सो. देयर इज वन क्वेश्चन लेफ्ट. फिफ्थ वन इज असेंबली languages uses very short words for commands known as dash to give instructions to the computer. ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि असेंबली लैंग्वेज की जो कमांड्स है उनको क्या बोलते हैं, वो कोड्स को क्या बोलते हैं जिसे जो हम हेल्प करते हैं जो हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने में. जस्ट राइट डाउन. नाउ सी द आंसर्स. A dash is a type of computer that has no keyboard and also be used for making calls. बेटा आप कॉल कैसे करते हैं? यू हैव योर मोबाइल फ़ोन. कौन सा मोबाइल फ़ोन? स्मार्टफोन्स. मैंने तो पहले ही बताया था आपको दैट स्मार्टफोन्स आर आल्सो अ टाइप ऑफ कंप्यूटर विच आर यूज टू मेकिंग कॉल्स आल्सो. और वो एक टाइप के कंप्यूटर होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं काम करने में. माइक्रो कंप्यूटर्स दे आर. सो द आंसर ऑफ फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स इज स्मार्टफोन्स. Now the second is a dash are smaller computers that runs on microprocessor in their central processing unit. बेटा माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ माइक्रो कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं. सो माइक्रो मैंने ऑलरेडी रखा था कि क्वेश्चन में ही आंसर होता है. माइक्रो प्रोसेसर आर ओनली यूज बाय माइक्रो कंप्यूटर्स. सो वो छोटे कंप्यूटर्स होते हैं जो अपने कंप्यूटर पर सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करते हैं. नाउ थर्ड वन इज माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल. ओके, द थर्ड वन इज a dash translate entire program written in high level language into machine level language in one go. So कौन सा ट्रांसलेटर है जो पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में ट्रांसलेट करता है फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज? दैट इज कॉल्ड कंपाइलर. आई हैव टोल्ड यू, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है और कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है. ओके, अंडरस्टैंड. Now the fourth question is, for fill in the blanks is, a dash is a formal language designed to communicate instructions to the computer.
वो लैंग्वेज जो हमें हेल्प करती है, विच हेल्प द यूज़र टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस और इनपुट देने के लिए कौन सी लैंग्वेज काम करती है, डेट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो फॉर्मल लैंग्वेज है जिसको हम एक सेट में लिखते हैं, एक फॉर्म में लिखते हैं, सिंटेक्स में लिखते हैं, जो कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं जिससे, और कंप्यूटर उसको ट्रांसलेट करके हमें आउटपुट देता है, डेट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Now fifth one is the assembly language use which short code to give the instructions to the computer। assembly language बेटा क्या बनाती है, मैंने बताया था, mnemonic codes which are made by assembly language which can helps to give instructions to the computer। mnemonic codes is the answer। okay बेटा, इनमें से आपको कुछ भी अगर समझ नहीं आता है तो यू ऑल हैव आवर व्हाट्सएप नंबर्स, यू कैन रिवर्ट ऑन दैट व्हाट्सएप नंबर्स। आप उनमें हमसे पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ का, अगर नहीं आपको कंफर्म हो रहा, यू कैन यूज़ एनी टाइम, यू कैन रिवर्ट अस, ओके। एंड जितनी मर्जी बार पूछिए, बट यू हैव टू क्लियर द कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस, ओके, बिकॉज दिस इज योर रिविजन क्लास, अंडरस्टैंड। सो बी प्रिपेयर्ड विद दिस multiple choice questions and fill in the blanks। In next part of this exercise, we will discuss true and false and some small question and answers, okay? So thank you so much, students, and be ready for the exam. Thank you.